हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आई विल बी गिविंग सम टिप्स टू यू रिगार्डिंग हाउ टू अटेम्प्ट द स्लैट पेपर दैट इज गोइंग टू हैपन tomorrow, that is 11th. So basically we'll be discussing what to do, what not to do, what are last minute tips that we should focus upon. I'll be talking about how to attempt the paper, as well as I'll be talking about what subject strategies you can opt for while attempting tomorrow's SLAT exam. So let's begin with the last minute tips for SLAT 2024, that is test 2. Test 1 has already been conducted, fine, and now you'll be appearing for the second test that is going to conduct tomorrow in the morning. So let's start with the session now. Test 1 happened on the 5th May and it's been done, and the paper was pretty easy. Every section was easy. The small things were there. That some static questions were more in GK. Also there were question of quant in reasoning section. So these are the few takeaways from test 1. Now when you're preparing for test 2, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं जैसा टेस्ट 1 आया था एग्जैक्टली वैसा ही टेस्ट 2 आएगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू सिम्बायोसिस द थिंग्स आर बिट थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। हो सकता है दैट यू फाइंड सेम पेपर पैटर्न टेस्ट 2, और ये भी हो सकता है यू विल फाइंड सम चेंजेस. You may find question of current affairs coming more as compared to strategic. You may also find that question of quant reduces in reasoning section. So all the things are possible. Test 1 can only be used as a reference, as a feedback, that what more you can do to improve, that if this kind of paper pattern comes in again, then you should score good. Else you should be prepared for other kind of paper patterns also. Fine. Results will be declared on 22nd of the May after these two tests have been conducted, and then they will be announcing the PI VAT date. Now for PI and VAT date and preparation model will be having a separate video. Right now we'll focus only upon the last minute tips that you should follow for tomorrow's paper. Fine. Now the first things first, the tomorrow's paper is scheduled at 9 to 10. That's a 1 hour paper. You will be having 5 sections, as you all बी अवेयर ऑफ. आप में से बहुत सारे बच्चे टेस्ट 1 ऑलरेडी दे चुके होंगे, काफ़ी सारे बच्चे अब सिर्फ टेस्ट 2 देंगे, लेकिन वो टेस्ट 1 का पता होगा. सो अगेन, सिंस द पेपर इज इन मॉर्निंग, आई स्ट्रांगली रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू वेक अप अर्ली फॉर टुमारो. हैव ए प्रॉपर बाथ, यू शुड मेडिटेट, you should have a positive vibes and positive feeling of cleanliness when you approach to the exam center. Fine. There is no scope of negative thoughts. फाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर खुद नेगेटिव थॉट्स लेके एग्जाम में जाएंगे तो आउटकम नेगेटिव ही होने वाला है. सो यू शुड ऑलवेज फोकस अपॉन पॉजिटिव थॉट्स. डू नॉट थिंक कि पेपर कैसा आएगा, इट शुड बी डिफिकल्ट, वैसा ही आया, ऐसा नहीं आया. तो ऑल दोज थिंग्स यू शुड नॉट थिंक अबाउट. यू शुड ओनली थिंक अबाउट द फ्यू थिंग्स. आपने बहुत पढ़ाई करी है, यू हैव गिवन योर बेस्ट अटेम्प्ट, यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, यू हैव प्रैक्टिस्ड वेल. नाउ द पेपर, if the paper is conventional one, you are going to crack it. If it's unconventional one, in that case everyone will have a fight. It's not only for you. So again, do not give excess thought or unnecessary, do not go with unnecessary preoccupied notions. Go with a feel of confidence. You have a sufficient time to attempt the paper. Now for SLAT exams, if I talk about, if I compare last 5-10 years paper, it's a same story always. It's a very easy kind of paper, and everyone has sufficient time to attempt the paper. Fine. So do not worry about the paper pattern or difficulties of it. Normally paper is very easy. One again, इस पूरे पेपर को आप एक सिंपल पेपर की तरह ट्रीट करो. उसमें बायस्ड होके मत जाइए कि मेरे को मैथ्स नहीं आती, मैं मैथ्स नहीं करूँगा, या मैं स्टैटिक जीके में ज्योग्राफी नहीं करूँगा. Again, questions may be very simple. If they are so simple, then why not to attempt it? बहुत सारे बच्चे मैथ्स में गलती करते हैं, मैथ्स देखते ही छोड़ देते हैं. वो बाद में उनको मालूम चलता है क्वेश्चन इतना इजी था कि अगर वो अटेम्प्ट करते तो इवन दे शुड हैव स्कोर्ड द मार्क्स. फाइन. सो डू नॉट गो विथ प्रीऑक्यूपाइड नोशंस. यू विल हैव proper time to attempt all the question in all the sections. Fine. Only thing you can do right now is revise thoroughly. Fine. And when we talk about revise thoroughly, what to revise? ऑब्वियसली बात है, आपने इतनी तैयारी करी है, अब एक दिन के अंदर बहुत कुछ चेंज नहीं होने वाला. तो जो आपने बहुत ढंग से करा है ना, एंश्योर कि उसमें आप कोई मार्क्स नहीं गवाएं. सो फॉर दैट पर्पज रिवाइज थॉरोली ऑल द थिंग्स जिसमें आपको लगता है कि यू आर अबोव एवरेज और गुड, उन सबको बहुत ढंग से रिवाइज करके जाइएगा आप एग्जाम के अंदर कल. Now I will talk about just preparation strategy for today
for tomorrow's paper subsection wise. Well, let's start with English section. Now टेस्ट 1 के अंदर क्या हुआ था? टेस्ट 1 के अंदर हमारे पास 4 इजी पैसेजेस आए थे, फाइन, जिनके बारे में लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बोला था व्हेन आई गिव द एनालिसिस किस किस तरह के क्वेश्चंस और पैसेज इसमें आए थे. नाउ अगेन नॉर्मली स्लैट एग्जाम के इंग्लिश पैसेज इजी ही आते हैं. सो अगेन दिस ईयर in this paper also you will find very easy you may find easy passages over there. difficulty level almost same सा ही रहने वाला नॉर्मली रहता है. ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर सकते हैं, एक थोड़ा मॉडरेट लेवल का पैसेज दे देंगे. बट अगेन डू नॉट वरी अबाउट दीज थिंग्स. व्हाट यू शुड डू इज, जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करें, इंग्लिश सेक्शन को अटेम्प्ट करें, सबसे पहले एक बार आप पैसेज का पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पैसेज थोड़ा सा किस बारे में है. फर्स्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ और वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ एनी रीडिंग कॉम्पिटिशन पैसेज, प्लस जस्ट स्कैन द क्वेश्चंस. एक बार क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, यू विल गेट एन आइडिया कि क्वेश्चन की लैंग्वेज सिंपल है कि टिपिकल है. यू विल गेट एन आइडिया कि ऑप्शंस जो दे रखे हैं दे आर आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस के अंदर आपको डायरेक्ट आंसर मिल रहा है या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा आंसर देने के लिए, या इट्स अ मिक्स ब्रेड कि कुछ क्वेश्चन तो इजी हैं और कुछ क्वेश्चन थोड़े से इनडायरेक्ट हैं. सो इन दैट केस यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ और इससे एसोसिएटेड क्वेश्चंस हैं ये इजी हैं, मॉडरेट हैं कि टफ हैं. फाइन. एंड अगेन रीड विथ कॉन्सेंट्रेशन. इंग्लिश सेक्शन के अंदर अगर पेपर आसान आता है, नॉर्मली ये पेपर भी अगर आसान आया तो आपके पास देखो, आप कॉम्पिटिशन में पीछे कहाँ जाओगे? आप कंपटीशन में पीछे तब जाओगे एक इजी पेपर के अंदर जब आप गलतियां करोगे, सिली मिस्टेक्स करोगे, आप इनएक्यूरेट आंसर स्टिक करोगे. सो इन इजी पेपर आपकी एक्यूरेसी शुड बी एक्सट्रीमली हाई और वो आप तभी अटेन कर पाओगे जब आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ रीडिंग के अंदर इन्वॉल्व होगे, क्योंकि गलती का स्कोप नहीं होता इजी पेपर के अंदर. इजी पेपर में आपने गलती की और आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाते हो. सो हमेशा इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा. सो इंग्लिश के अंदर आप सफिशिएंट प्रैक्टिस कर चुके हैं. द ओनली थिंग टू शुड इज स्कैन द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन इजीली अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. फाइन. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जीके सेक्शन. इन द फर्स्ट टेस्ट दैट हैपेंड ऑन 5th, जीके के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेक्शन, इसके अंदर अपने पास स्टैटिक के क्वेश्चंस काफ़ी आए थे. कुछ क्वेश्चन 2 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड थे, बाकी अधिकतर क्वेश्चन स्टैटिक जीके के थे. You might find number of static questions this time also, but keep one thing in mind. यहाँ पे आपको जिसका ध्यान रखना है, ऐसा हो सकता है कि इस बार करंट के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आ जाएं और ऐसा भी हो सकता है कि एग्जैक्टली जो लास्ट पेपर में हुआ था वही रेप्लिकेट हो. फाइन. सो व्हाट यू शुड डू इज, आपने स्टैटिक की तैयारी ऑलरेडी जितनी करी है ना, आप उतनी ही तैयारी के साथ पेपर में जा सकते हो. बस उसको रिवाइज बहुत ढंग से कर लेना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बच्चे क्या कन्फ्यूज होकर कुछ आंसर डेटा मिस कर जाते हैं. जब तक आपने आंसर रटा हुआ नहीं है आपके नंबर नहीं आएगा. कन्फ्यूजन में आप सिली मिस्टेक कराओगे, बी टिक करना था आप सी टिक करें और नंबर आपका लॉस हो जाएगा वहाँ पे. एंड अगेन इन इजी पेपर अगर आप गलत आंसर टिक करोगे तो आप बहुत तेजी से कंपटीशन से बाहर होगे. फाइन. कुछ क्वेश्चन ट्रिकी और टफ हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना अगर आपने सफिशिएंट पढ़ाई करी है तो अगर आपको क्वेश्चन वो टफ लग रहा है ना तो दैट सिंपली मीन्स सबके लिए टफ होगा. तो इसके ऊपर ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना. आप एक दिन के अंदर पूरी जीके तैयार नहीं कर सकते हो. जितनी आपने तैयार करी है एंश्योर कि उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो मैं सही करके आऊँगा. तो उसके लिए जितना कंटेंट आप अब तक इकट्ठा कर चुके हो जीके का, चाहे स्टैटिक का हो चाहे करंट का हो, उसको बहुत ढंग से रिवाइज करके जाना. फाइन. ऐसा ना हो कि हम पढ़ा तो था लेकिन फिर भी आंसर टिक गलत करके आ गए. दैट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो दैट यू शुड डू, दैट यू कैन डू इन फैक्ट. फाइन. सो जीके अगेन फोकस ऑन द स्टैटिक जीके एज वेल एज करंट जीके. जितना करा है उसको ढंग से थॉरली रिवाइज करके आपको एग्जाम में जाना है. लेट्स टॉक अबाउट लीगल सेक्शन. नाउ इन लीगल सेक्शन जो आपका पहला टेस्ट हुआ था उसके अंदर फैक्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चन आए थे, जिनके अंदर नेग्लिजेंस, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एविडेंस, चाइल्ड मैरिज, लाइबिलिटी, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, ये बहुत बेसिक कन्वेंशनल तरह के फैक्ट प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन थे. और लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन स्लैट में हमेशा कन्वेंशनल ही आते हैं. आपको थोड़ा बहुत चेंज क्या दिख सकता है, यू माइट फाइंड 1 or 2 स्टैटिक लीगल जीके टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बट अगेन दे विल बी वेरी सिंपल. स्टैटिक जीके लीगल आप सब जानते हैं किस तरह की होती है, बट अगेन हो सकता है एक भी क्वेश्चन नहीं है, हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन आपको लीगल जीके के मिल जाए. इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं. पिछले सालों के प्रिंसिपल्स भी लोग काफ़ी यूज़ कर लेते हैं, बट अगेन डेटा फैक्ट वगैरह थोड़े नए होते हैं. दिस इज वन थिंग, अगर आपने लीगल की फैक्ट प्रिंसिपल बेस्ड की अगर तैयारी करी है तो वेरी इजीली यू कैन स्कोर इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, एंड इसमें आपको स्कोर करना भी चाहिए.
अब मैं बात करता हूँ रीजनिंग सेक्शन के बारे में, जो LR का सेक्शन होता है, रीजनिंग का सेक्शन फर्स्ट। नाउ LR सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर ब्लड रिलेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, सब तरह के क्वेश्चन आते हैं। व्हाट आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू यू इज सारे टॉपिक्स की ढंग से रिविजन करके जाना। ये मत करना कि डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन नहीं आता तो मैं डायरेक्शन सेंस छोड़ जाता हूँ, इट माइट कम इन दिस टाइम, फाइन। सो डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशंस, स्टेटमेंट अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कंक्लूजन, हर चीज आपको ढंग से रिवाइज करके जानी है, क्योंकि सिर्फ टोटल 12 क्वेश्चंस आएंगे तो एक एक क्वेश्चन हर अलग अलग टॉपिक का भी आ सकता है, फाइन। तो इन दैट केस रिवाइज एवरीथिंग। अपनी जब आप रीजनिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ना, मेक वन थिंग वेरी श्योर, शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट। एंड रीजनिंग के क्वेश्चन जल्दीबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंट होके या अंडर कॉन्फिडेंस में करोगे तो आप नॉर्मली गलती करके आ जाओगे। कुछ ट्रिकी क्वेश्चन हो सकते हैं, पिछले टेस्ट में भी थे जो 5 तारीख को हुआ था, इसमें भी आ सकते हैं। अगर ट्रिकी क्वेश्चन आपके पास आता है तो उनको जल्दी करने के ना सोच के बजाय उनको सही करने के ऊपर थोड़ा सा आपको टाइम देना चाहिए। इजी क्वेश्चन जो आएंगे वो बहुत इजीली डूएबल होंगे। सिली मिस्टेक्स गलती से भी मत कर देना, खासकर जो क्वेश्चन अजम्पशन, कंक्लूजन, इस तरह के CR बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और वी आर वेरी मच प्रोन टू डू सिली मिस्टेक्स ओवर देयर, फाइन। तो वहां पे आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है, क्योंकि अगेन मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, स्लैट का पेपर पैटर्न नॉर्मली सिंपल होता है, हर बच्चा ऑलमोस्ट पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आता है, तो जो सिली मिस्टेक्स कर देता है वो कंपटीशन से बाहर हो जाता है। तो यू अवॉइड दीज थिंग्स इन रीजनिंग सेक्शन ऑल्सो। अगर अपन बात करते हैं AR सेक्शन की, जिसमें लास्ट टाइम मैथ्स के काफी सारे क्वेश्चन आए थे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, DI का भी क्वेश्चन आया था, प्रोबेबिलिटी का भी एक बेसिक क्वेश्चन आया था, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। यू माइट फाइंड सेम काइंड ऑफ पेपर पैटर्न अगेन, लेकिन ऐसा ही होगा इसकी जरूरी नहीं है। हो सकता है मैथ्स के क्वेश्चन कुछ कम हो जाए, हो सकता है यहाँ पे आपको कुछ पजल्स बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा मिले, बट अगेन यू शुड बी, ये जो मैथ्स के जिन टॉपिक्स की अपन बात कर रहे हैं ये वो एलिमेंट्री टॉपिक है जो आपने पूरे साल पढ़े हैं। ऑल यू नीड टू डू इज इनके फॉर्मूले रिवाइज करके जाना, जस्ट रीड द सॉल्व्ड एग्जांपल्स, रीड द क्वेश्चन, देन उसके बाद सोल्यूशन में क्या करा उसको एक बार पढ़ लो, ताकि आपको क्विक रिवीजन हो जाए कि किस तरह की कैलकुलेशंस वगैरह आपने वो करनी है। अगर इनके क्वेश्चंस अगर आते हैं तो देन अगेन, बाकी तो आप प्रैक्टिस काफी सारी कर चुके हो, बस आपको ध्यान देना है जब आप कैलकुलेशन करो, प्लीज अवॉइड सिली कैलकुलेशन मिस्टेक्स। आपको सिली कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, फाइन। एंड वन मोर थिंग, ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। बिना क्वेश्चन पढ़े जस्ट यू स्मेल द क्वेश्चन कि 5 लाइन का क्वेश्चन आ गया, स्मेल इट एंड लीव इट, ये मत करना। हो सकता है वो क्वेश्चन दिखने में 4-5 लाइन का हो लेकिन वैसे बहुत सिंपल हो। सो प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, बट अगेन व्हेन आई से ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, एक थिंग बात ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि इस कोशिश के अंदर आप बाकी कोई पूरा सेक्शन छोड़ जाओ, फाइन। क्यों मैं मान के चल रहा हूं कि आप बाकी सारे सेक्शन को भी ऑप्टिमाइज तरीके से टाइम अलॉटमेंट कर रहे हो। इन दैट केस गिव ए टाइम अलॉटमेंट टू दिस सेक्शन, और उसके अंदर इजी क्वेश्चंस निपटा दिए आपने पहले, एंड देन यू अटेम्प्ट अदर क्वेश्चंस आल्सो, फाइन। नाउ this is the basic summary of what action plan you should follow during the paper. Paper might be on lines of the test one, or it might be something different kind of paper. तो इसके ऊपर preoccupied mindset से मत जाना, it's unpredictable। हाँ, normally होना क्या चाहिए, 30-40% ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, बट अगेन इससे अपन इसके बेसिस पे अपन तैयार होकर नहीं जाएंगे, हम पेपर देने जाएंगे अपनी खुद की मेहनत की बेसिस पे, कि चाहे कैसा भी पेपर पैटर्न जाए, वी शुड बी एबल टू डू इट, फाइन। नॉर्मली पेपर हमेशा इजी आता है, इसके अंदर छोटी छोटी गलतियां और सिली मिस्टेक्स विल थ्रो यू आउट ऑफ द कंपटीशन, दैट्स ये मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं। नाउ पेपर स्टार्ट हमेशा उस सेक्शन से करो जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो स्टार्ट विद द इंग्लिश, उससे मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी है, स्टार्ट विद द रीजनिंग, उससे मेरी जीके बहुत अच्छी है, शुड स्टार्ट विद द जीके इन दैट केस। बट मेक वन थिंग वेरी वेरी क्लियर, ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल टू स्विच इफ रिक्वायर्ड। कहने का मतलब ये कि लेट्स से मेरी जीके बहुत अच्छी है, आई विल स्टार्ट विद द जीके, लेकिन जीके में मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा स्टैटिक का जो शायद मुझे नहीं आता, दूसरे पे मुझे डाउट है, तीसरे पे मुझे डाउट है, तो इंस्टेड ऑफ लूजिंग योर कॉन्फिडेंस, you should be able to give feedback to your mind that probably I'm not connecting with it right now, let's come back again, switch to your second best option, fine। do not be adamant कि नहीं मैं पहले तो यही करूंगा। ध्यान रखना, this last point is very important, utilize first and last 5 minutes, शुरू के 5 मिनट, शुरू के 10 मिनट अगर आपने कॉन्फिडेंस लूज कर लिया ना पेपर के अंदर, तो दैट वुड बी अ ब्लंडर फॉर यू,
तो शुरू के 5-10 मिनट कुछ भी हो जाए, आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, इसलिए अपन बोलते हैं स्टार्ट वहां से करो जो आपका सबसे अच्छा सेक्शन हो, ताकि आप कॉन्फिडेंस गेन करो। और अगर आप स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस लूज करोगे तो आगे जाके यू विल कमिट सिली मिस्टेक्स अंडर द प्रेशर। फाइन। तो शुरू के 5 मिनट में आपको हमेशा वो सेक्शन अटेम्प्ट करना है जो सबसे आसान लग रहा हो या तो आपको, या जो आपको बहुत ढंग से आता हो, ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ पेपर को कैरी करो। एंड लास्ट के 5 मिनट वो होते हैं जब बच्चे नॉर्मली भागा दौड़ी करते हैं, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग क्वेश्चंस को स्किप करते रहते हैं। नाउ अगेन प्लीज मेक ए प्लान कि आखिरी 5 मिनट आपको कैसे यूटिलाइज करने हैं। टेक्निकली आखिरी के 5 मिनट आप पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पे यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो इंग्लिश को लास्ट के लिए मत रखना, क्योंकि 5 मिनट पूरा पैसेज पढ़ के क्वेश्चन आंसर करने में दिक्कत आएगी। यू शुड ऑलवेज कीप वन सेक्शन जिसके अंदर आखिरी 5 मिनट के अंदर फटाफट क्वेश्चन पढ़ा, फटाफट आंसर किए। फॉर एग्जाम्पल जीके कैन बी केप्ट फॉर द लास्ट 5 मिनट्स इफ इट्स नॉट योर बेस्ट सेक्शन। रीजन, लास्ट 5 मिनट के अंदर आप पूरा सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज रीड द क्वेश्चन एंड टिक द आंसर। फाइन। तो और यहाँ पे आपको कुछ डिराइव नहीं करना है, कुछ सॉल्व नहीं करना है। जस्ट अ सजेशन, इट्स आई एम नॉट सेइंग कि जीके लास्ट में करो, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, बट अगेन आखिरी 5 मिनट को यूटिलाइज, पहले 5 मिनट और आखिरी 5 मिनट का प्लान जरूर बना के लेके जाना। एंड बार बार सेक्शंस में स्विचिंग मत करना। एक बार अगर आपने कोई सेक्शन उठाया है तो उसके एक बार सारे क्वेश्चन से गो थ्रू होने के बाद ही आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाना, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट सेक्शन, क्योंकि वहां पे कॉन्फिडेंस का गेम है। अगर आपने फर्स्ट सेक्शन उठाया, उसमें आपको कॉन्फिडेंस लूज होता दिख रहा है, स्विच कर दो सेकंड सेक्शन में, उसे कंप्लीट करो, देन थर्ड है, उसके बाद वापस फर्स्ट पे आ जाओ। फाइन। बट अगेन ऐसा नहीं हो कि मैं पहले हर 10 मिनट के अंदर सेक्शन स्विच कर रहा हूँ, पहले सेक्शन 1 के 3 कर लिए, फिर सेक्शन 2 के 4 कर लिए, फिर सेक्शन 3 के 2 कर लिए, फिर वापस सेक्शन 1 पे आ गए, फिर वापस सेक्शन 5 पे चला गया। इस तरह के बार बार स्विचिंग मत करना, आप अपने ब्रेन को स्टेबल नहीं होने दोगे विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और टॉपिक। फाइन। सो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी तो देखिए, यू हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट, यू हैव प्रिपेयर्ड वेल इनफ टू क्रैक दिस एग्जाम, एंड SLAT exam is an easy paper. Have confidence, have faith in your preparation, and you are going to rock it tomorrow. Best of luck from the entire CLAT Prep team, and we will support you in any which way we can. We'll also be putting up analysis after the exam is over tomorrow. So go through it, subscribe to our channel so that you will get updated on the runtime basis. Fine. Thank you. Best of luck once again.